So I'll be starting off the podcast and then we'll be getting on what also, this is Zainab, and I am currently the business plan lead at NAS Formula Student Team. And with me, I have Abdul Mateen. He is the marketing lead of NFST. And today we have our guest over here, Jo K. He's not only an entrepreneur, someone who's right now leading a company over here in Pakistan, but he's also an alumni of NFST that actually started off the formula culture over here in Pakistan. So with us we have Mr. Shah Talha, who is currently managing the marketing at Mode Mobility, right? The marketing manager. A bit more, but yeah. Oh, okay. So yes. So starting off, this is something new for us. This is a new setup. Our previous podcasts were all online. So this is something new for us. This is something new for our guest as well. Having him over here is definitely something that we always wanted to do, and actually we've been texting him for months now, and unfortunately he was busy, but now that he has time, it's great to have him over here. So starting off, how are you today, and what's life like these days for you? Good, alhamdulillah. It's a struggle. As you guys know, आप लोग भी एक struggling venture के part हो और you guys understand what it is like to do a project of that nature. तो हम लोग अभी almost similar lines पे ही है. So it's a struggle every day. But what we do is we try to do our best that day and leave best to Allah. So हैं struggles हैं. Let's talk about them in detail. But yeah, but so far so good. मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्ट्रगल फेज एनएफएससी से शुरू हुआ था इट इज नाउ इन द कंटिन्यूअस फेज। बार मैं सोचता हूँ कि यार व्हाई डिड आई चूज दिस लाइफ। पहले एनएफएसटी में सारे स्ट्रगल्स थे, फिर आगे भी, लेकिन आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर मेंट टू डू, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल्स नहीं होते ना तो थोड़ा सा फुलफिलमेंट भी नहीं होती, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती। एक्चुअली बीच में आफ्टर एनएफएसटी एंड बिफोर स्टार्टिंग मोड, जो मेरे 4-5 साल करियर के थे, उसमें फुलफिलमेंट ही मिसिंग थी, तभी दैट बेसिकली फोर्स्ड अस टू स्टार्ट दिस. So the struggle is on, but that's part of the life and we're enjoying it. हाँ मेनली क्योंकि आई गेस जो एनएफएसटी है वो आपका डोपामाइन लेवल कुछ इतना बढ़ा देती है कि अगर आप प्रॉपर एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो वो आपकी सैचुरेशन लेवल तक आ नहीं पाती। हम स्टार्टअप कल्चर वाली चीज़ के ऊपर, स्टार्टअप स्ट्रगल वाली चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, बट लेट्स आई गेस उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं जिससे हम तीनों रिलेट कर सकें, स्ट्रगल ऑफ एनएफएसटी। तो आपका क्या रोल था, एट विच पोजीशन यू वर? Basically, Najiullah, who's my partner at Mode as well, he obviously found out about the competition. He were among the pioneers in Formula Student in Pakistan. उन्होंने अपने ज़माने में एफर्ट शुरू की एंड उस ज़माने में 2012 में जो पहली टीम बनी, he was somewhat part of it. और उसके बाद जो 2013 की टीम बनी उसमें ही was the proper marketing lead. मेरे और उनके हम we were family friends, तो he knew me because of that connection. But apart from that, he understood कि अच्छा मेरा थोड़ा बहुत marketing का background है, although we were in the same engineering university doing mechanical engineering. बट मेरा एक्यूमेंट थोड़ा मार्केटिंग साइड पे था, टेक्निकल साइड पे काम था, तो उन्होंने कहा यार तुम भी आ जाओ और एज मार्केटिंग टीम मेंबर ज्वाइन कर लो. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट. और 2013 के अंदर जो है वो मेरे लिए भी थोड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था. उसमें हमने जो भी स्पॉन्सरशिप वगैरह रेस की, दैट वाज मोस्टली थ्रू नस सीएससी डिपार्टमेंट, जो कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल होता था, उनके थ्रू. बट दैट्स वेयर वी बिल्ड द कनेक्शन, दैट्स वेयर वी अंडरस्टूड द कंपटीशन, क्या नेचर है, किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, किस लेवल के बजट चाहिए. और 2013 के बाद फिर 14 में वी वेंट अहेड एंड वी डिड मच मोर. बट उस साल भी स्क्रूटिनियरिंग नहीं हुई थी. एंड उसके बाद फिर 2015 में दैट वाज द हाई. बट so that's how we started. Najib bhai was the technical lead, I was the marketing lead. Together we tried to make it happen. Obviously not just the two of us, there was a whole bunch of team and सबकी contribution थी. हम लोग बस अपना रोल अदा कर रहे थे. और माशाल्लाह सारे ही, अब जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, सारे अच्छी जगहों पे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं. हम लोग का सिर्फ ये था कि सिंस वी वर सो फोकस्ड ऑन इट, हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते थे कि अच्छा यार व्हाट्स द बिगर पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस ना, व्हाई आर वी डूइंग दिस, हाउ डू वी ले फाउंडेशन ऑफ समथिंग जो कि हमेशा हमारे बगैर भी आगे बढ़े और जो है उसकी लेगेसी रहे. सो उस तरह पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था, करेक्टिंग द फंडामेंटल्स, making sure you leave behind something.
तो उस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस था। एट द सेम टाइम जो जिन स्पॉन्सर्स ने हमें ट्रस्ट किया था, इंटरेक्टिव ग्रुप शायद साहब, उनको रिटर्न देना, मेक श्योर करना कि यार जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके साथ वो अचीव हों, मेकिंग श्योर कि यार पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे अचीव हो। सो इट वाज अ लॉट फॉर अस बीइंग स्टूडेंट्स। और मेरा जितना प्रोफेशनल करियर है, आई वो लॉट टू फॉर्मूला स्टूडेंट। मेरी पहली जॉब वाज बिकॉज ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट। ऑल माय लर्निंग टू दिस डेट वाज बिकॉज ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट। टू दिस डेट आई से कि मेरी जिंदगी का जो हाई था ना, जैसे आप कह रहे हो डॉक्टर लेवन, वो एक्चुअली फॉर्मूला स्टूडेंट ही था। क्योंकि वो जो सेलिब्रिटी फील्ड आपको फॉर्मूला स्टूडेंट में आती है ना, उसके बाद मुश्किल ही आती है। सो एंड कंसिडरिंग द होल यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, फॉर्मूला स्टूडेंट मेड इट मच 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 मोर बेटर। बट वही वाली बात है कि यार जितना हमने दिया उससे ज़्यादा हमें मिला। तो और ये सबके लिए वैलिड है, ये आप लोगों के लिए भी वैलिड है और ये बाकी लोगों के लिए भी वैलिड है। आप लोग भी आज यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, यू गाइस आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट एंड एवरीथिंग, एंड अपनी जेब से पैसे लगा के टिकट लगा के जा रहे हो। हमने तो शायद ये भी नहीं किया था उस टाइम पे, लेकिन ऑल दैट यू आर पुटिंग इन, that's part of your learning experience and that'll come out. So yeah, so there's a lot more and there's a big story behind it. आई गेस मी इन माई फोर्थ ईयर, मेरा भी लास्ट मंथ रह गया NFST में। बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ मैं आपसे अलाइन कर सकता हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद मैं भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आया थ्रू अ सीनियर, देन आई बिकेम द मार्केटिंग लीड। लेकिन आई गेस थ्रू आउट दैट एक्सपीरियंस PNEC, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, at some time is one of the finest institution, but at some times there are also backside of the PNEC. तो अभी हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, बट नाउ देयर इज़ अ लेगेसी के 12-13 साल की एक टीम है, तो थिंग्स आर बिट मोर ईजियर फॉर अस। लेकिन मैं ये रियलाइज़ कर सकता हूँ कि आज से 13 साल पहले की PNEC, तो हाउ वॉज दैट फॉर यू कि एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। आई नो दैट देयर वॉज कैप्टन नदीम अहमद शहीद विद यू, लेकिन स्टिल हाउ वॉज दैट प्रोसेस? देखिए, जब कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो ना, और सबसे स्ट्रगलिंग फेज जो होता है ना, वो वही होता है। उस पॉइंट पे ना यू हैव टू हैव दैट बिलीव इन यू कि अच्छा यार, इल गो समवेयर, विल मेक इट हैपन। और अगर आपके अंदर वो यकीन हो तो फिर दूसरे भी आपके अंदर यकीन करते हैं। वो यकीन जो है ना, वो मैं जैसे आपकी टीम से पहले भी ऑफ एयर बात कर रहा था कि यार वो जो हमने स्ट्रगल देखा ना, वो आप लोगों को फिर भी लेगेसी, आप किसी को तस्वीर दिखा सकते हो कि ये देख रहे हो ट्रैक पे गाड़ी है, यहाँ पे आपका लोगो हो सकता है। हमारे पास तो ट्रैक की कोई गाड़ी की तस्वीर भी नहीं थी ना। तो आई थिंक इट्स जस्ट द विल, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। और बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है, कनेक्शंस बन जाते हैं, कहीं से डोनर्स आ जाते हैं, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, आपको लिए आसानी हो जाती है। बट व्हाट वी डिड वाज वी स्ट्रगल्ड हार्ड, वी वर वेरी फोकस्ड। हम लोग ने मेक श्योर किया था कि हम वी आर डूइंग इट फॉर द राइट रीजंस एंड आल्सो डूइंग इट द राइट वे। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं कि बस सिर्फ ये गोल नहीं है कि बस यूके का ट्रिप हो जाए, मतलब वी वर थिंकिंग मच मोर। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊं तो हम लोग जब 2013 में ना वापस जब आ रहे थे ना, उस जमाने में PIA की डायरेक्ट फ्लाइट आ रही थी इधर, तो 9 घंटे की फ्लाइट में ना पूरे टाइम जो है ना, वो ओवरनाइट फ्लाइट थी, और पूरे टाइम जो टीम थी ना, वो इतना हेविली डिस्कस कर रही थी फॉर्मूला स्टूडेंट को और नेक्स्ट ईयर के प्लान्स, कि जब हमारी फ्लाइट लैंड की ना, तो एक आंटी उठ के कहती है कि यार तुम लोग ने कौन सी गाड़ी बना दी है, सोने नहीं दिया पूरी रात। क्योंकि वी वर सो इन्वॉल्व, एवरीबडी इन द टीम वाज सो इन्वॉल्व कि यार इट वाजंट जस्ट अबाउट द यूके ट्रिप फॉर देम, कि वो बस वापस आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार भाई हो गया, ट्रिप हो गया, घूम के आ गए, बस अब इट्स ओवर, वी गो ऑन विद आवर लाइफ। नहीं था। जैसे नजीब भाई है, नजीब भाई का तो उनको तो हटाना पड़ा इससे, मतलब वो आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, इवन while doing his masters from Australia, वो वहीं से भी इन्वॉल्व थे। वो कहना पड़ा यार move on and do other things in his life, but the idea is कि यार you have to have that will, you have to have that sincerity, resilience। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, जो PNEC भी आपको शायद सिखाता है, वो unnecessary struggles हैं। बट मैं तुम्हें बताऊं, कमिंग मतलब टॉकिंग टुडे 10 years down the line, I graduated in 2014, वो स्ट्रगल्स हर जगह हैं। ठीक है, आज जो है ना, शायद मैं डीन के दफ्तर में जाके नहीं बात कर रहा, तो मैं कहीं और अपने स्ट्रगल्स निपटा रहा हूँ और भुगत रहा हूँ, और फ्रॉम बैंकिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू वेंडर्स टू आई डोंट नो, सो मेनी स्ट्रगल्स। ठीक है, तो लेकिन जो PNEC सिखा देता है ना आपको, या जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट आपको सिखा देती है, पर से वो आपको रेजिलियंस सिखा देती है। इफ़ यू डोंट हैव दैट रेजिलियंस ना, इट्स इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल टू ऑपरेट हियर, विच इज़ नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि यार बहुत आइडियल सिनेरियो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, चीज़ें नहीं है, मसाइल हैं, but it is what it is, we have to make the most of it, and everybody has to contribute, and everybody has to contribute and do what, मतलब जो भी आप अपने एंड से कर सकते हो। तो हमने भी यही किया। आई वाज द फर्स्ट आईसेकर इन PNEC, आईसेक को लेके आए, फॉर्मूला स्टूडेंट शुरू किया,
एक हम ग्रीन वॉलंटियर्स ज़माने में एनजीओ में मैं पार्ट था, उसको भी लेके आया। सो अपना एक रोल प्ले किया ताकि आप यूनिवर्सिटी में कुछ बेहतर हो जाए, आगे चीज़ें आप और बेहतर लेके चल सको, आगे आने वालों के लिए एक लेगेसी शुरू हो जाए। आज भी विद मोड मोबिलिटी दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। कोई हालांकि जब हमने शुरू किया था तो अब आज तो ये ईवी का बूम भी है, तब कुछ भी नहीं था, बट नो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस, ताकि यार हमारे इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिले टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर अस। सो स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल्स थे, बट दैट्स हाउ वी ऑपरेट। Okay, so going back to what you said, my first job was because of Formula Student. So you graduated with a mechanical engineering degree. Then how did it go by? Formula Student से कैसे job मिली, and how did Mode Mobility come into being after that? So after graduation, जो हमारे current sponsors थे ज़माने में Interactive Group, Dr. Shahid Mahmood, he asked me that I want to keep sponsoring the team, but I'll only do it if you're involved. So you have to stay with the team and work with them, so that जो हमारे targets हैं, he was really involved in terms of he wanted Pakistani and the Muslim team to go ahead and do good in terms of the scoreboard ranking. तो उन्होंने easy racing के साथ भी partnership की. He sent me and Najula to Sri Lanka to get trained. हम लोग we were very dedicated and we were working on Formula Student while representing a sponsor. तो I was being paid. तो पहली job मुझे ऐसी मिली कि मुझे पैसे मिले कि यार मैं Formula Student करूँ. तो पहले तो ये था. तो 2015 का जब competition हो गया उसके बाद तो नजीब भाई जो थे, he then decided to go to Australia for his masters, while I got the opportunity from the existing sponsor कि यार मैं उनको join कर लूँ in his business endeavors, because he for his personal reasons he didn't want to continue with the project, like continue sponsoring Formula Student, but he just wanted me कि यार तुम आ जाओ मेरे साथ so that we can do something together. So that's how I got. Then I met his son, and today his son is my business partner at Mode and at the other business I do. फिर बिकॉज मेरे अंदर ये था कि यार फॉर्मूला स्टूडेंट किया हुआ था तो ठीक है, इंजीनियरिंग एक्यूमेन कम था और मार्केटिंग एक्यूमेन या और बिजनेस एक्यूमेन ज़्यादा था, लेकिन शौक जो था ना वो ये था कि यार ये प्रोडक्ट बनाना है, एक स्पोर्ट्स टीम का पार्ट बनना है और जाना है, कंपटीशन में जाना है, वो एड्रेनलिन रश ही मिल रहा था बेसिकली. तो वो बहरहाल मेरे जो पार्टनर है शायान, हु इज़ करंटली द CEO ऑफ प्रो पाकिस्तानी एंड आइकॉन 7, वो उन्होंने कहा यार ये आइकॉन 7 में शुरू कर रहा हूँ, जॉइन मी. So I joined him and I worked with him for more than 5 years at Icon 7. लेकिन somehow ना वो adrenaline rush Icon 7 में नहीं मिल रहा था. So that's where for personal reasons I moved back to Karachi. I was in Islamabad then. Karachi जब मैं आया तो उस point पे नजीब भाई भी आ गए थे. He was in academia teaching. तो मैंने उनको यही कहा कि यार आप अपना potential ज़ाया कर रहे हैं. You're meant to do much more and let's do something together. I wasn't also fulfilled, although I was making money, although we were doing all right. एक और हमने सेल्स की कंपनी भी शुरू कर दी थी by the name of Trademore, वो भी it was doing fine. But somehow ना वो था कि यार अच्छा we want to do something on those lines, we have to create something, and we अब वो फॉर्मूला स्टूडेंट तो नहीं कर सकते, अब तो अब बाहर आ गए हैं यूनिवर्सिटी से. फॉर्मूला स्टूडेंट पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करें, वो करें, उसकी कोई कमर्शियल सेंस भी नहीं बनती, क्योंकि देखो अपने करियर में ना आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहिए होती है, ठीक है, एंड लर्निंग वाइज भी यू वांट टू ग्रो, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू बी फुलफिल्ड. सही है, आपको ये फुलफिलमेंट भी आनी चाहिए कि अच्छा यार आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर रहे, आप कुछ फुलफिलिंग कर रहे हो. तो उस पॉइंट पे वी थॉट व्हाट टू डू, एंड वी वर थिंकिंग, ही इज़ आल्सो माय नेबर, सो हम हर दिन मिलते थे, सोचते थे क्या करें क्या करें क्या करें. तो उस पॉइंट पे वी थॉट कि यार डूइंग टू व्हीलर्स मेक सेंस बिकॉज इट्स कमर्शियली वायबल, सो इट मेक्स अ बिजनेस सेंस एंड ऑल्सो टेक्निकली पॉसिबल टू डू ग्राउंड अ प्रोडक्ट. वरना तो आपको पता है प्रोडक्ट बनाना कितना स्ट्रगल है. यू गाइस आर डूइंग डिजाइनिंग. तो वहाँ पे हमने शुरू किया 2020 में, हमने कंपनी भी रजिस्टर करा ली, बट 2021 तक वी डिडंट रिवील इट, वी वर वर्किंग अंडर द हुड. फिर 2021 में आई आस्क्ड हिम टू लीव हिज जॉब एंड कम इन फुल टाइम, एंड फ्रॉम देयर टू दिस डेट इट्स बीन 3 to 4 years ऑलमोस्ट. और उसमें हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट द स्टेज कि इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू हिट मार्केट, नॉट एट अ फुल फ्लेज स्केल, बट doing pilot this year inshallah by the end of this year. Yeah, that's awesome. टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर कन्वर्सेशन, मैं भी अक्सर पॉडकास्ट देखता रहता हूँ और उसमें अक्सर इस बात पे डिबेट चल रही होती है कि भाई कराची का जो वर्किंग एनवायरनमेंट इट इज़ फार मोर सुपीरियर दैन द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द इस्लामाबाद. तो यू आई गेस डिड 3 years in इस्लामाबाद, मोर देन, तो एंड देन कम बैक टू द कराची. तो इज़ इट ट्रू कि कराची का जो है इट इज़ ये देखो मैक्रो लेवल की अगर मैं बात ना भी करूँ ना, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ. My career and my growth was exponential since I moved to Karachi.
अब आई डोंट नो, इट कैन बी फॉर वेरियस रीजंस, वी स्टार्टेड मोर, सो यहाँ पे इंडस्ट्री थी, यहाँ पे कनेक्शन हो गया, इवन इन माय द अदर सेल्स बिजनेस we grew, we started doing sales here, although we got results from Sialkot mostly, but still. So now my partner Shayan, he also says, yeah, I've seen you growing in Karachi. So so to answer your question, yes, that's what I believe. यहाँ पे growth fast pace है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं इस्लामाबाद के अंदर। इट्स मोस्टली कंस्ट्रक्शन अभी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम कर रही है, रियल स्टेट, बस फिर डेवलपमेंट सेक्टर गवर्नमेंट है। यहाँ पे एफएमसीजी से लेके ऑटोमोबाइल से लेके यू नेम इट, एंड सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर, मतलब यू टॉक अबाउट इट, सारी इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली यार अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, वर्क कल्चर बेहतर है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ ज़्यादा है। और बिल्कुल जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि एनएफएसटी, अगर एनएफएसटी इस्लामाबाद में होती तो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। येस एंड नो, देखो कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते थे ना, इस्लामाबाद इज बेटर स्ट्रक्चर्ड, सो हो सकता है थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ जाती, बट कराची के अंदर यू हैव मोर इंडस्ट्रीज, हो सकता है स्पॉन्सर्स ज़्यादा मिल सके, सो इट डिपेंड्स कि अब कहाँ हो। बट नाउ दैट यू गाइज are here and now that it was started in Karachi, your goal should be to make it the best, and इसकी एक वो है, लेगेसी है, ये एक बहुत बड़ा, ये हमेशा पहले भी बेस्ट थी, इसको आज भी बेस्ट होना चाहिए और आगे भी बेहतरीन बनना चाहिए। सो दिस शुड बी द epitome of Formula Student in Pakistan, and it should be the center of Formula Student. Right. Because so something that's really a buzzword these days, brain drain, and the whole idea कि अब तो graduate हो गए, अब तो बाहर जाना है, right? But as you said, Najiullah bhai did move out for his masters, but you stayed back here. You did a job over here, and you've been here for since you graduated, right? So how was your experience being over here while seeing everybody you have studied with moving abroad, having good jobs, studying abroad, definitely earning in euros or dollars, and having a better lifestyle than you over here? How was your experience, and what do you think? What are the future opportunities of people who are staying here? Like, is there an opportunity of staying here, or the whole idea कि brain drain है, exist करता है, that's true? So both things are true. Obviously, brain drain है, but supply बहुत है. So imagine the amount of engineers and designers and business people graduating every year. So मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है टुवर्ड्स वन एंगल। मैं, जो लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में पाकिस्तान को किससे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, शायद पैसे भिजवा रहे होंगे, चाहे हो सकता है पाकिस्तान के लिए कोई और अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बना रहे हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो लोग यहाँ पे हैं, जैसे हम लोग हैं या कोई और लोग हैं, वो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। मेरा सिर्फ जो बिलीव है वो ये है कि इट रियली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिनेरियो, कि हाउ, व्हाट आर योर सिचुएशन, व्हाट आर योर फैमिली सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर योर आई डोंट नो ग्रोथ सर्कमस्टांसेस। मेरे लिए आई हैड दोज प्रिविलेजेस कि मुझे, आई डिडंट हैव टू फॉर एग्जांपल पे बिल्स एट होम, या फिर मुझे कोई और इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं थे जिसके लिए मुझे इमीडिएटली जाना पड़े। सो आई वाज प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस। सो आई ओwe दैट टू दिस कंट्री कि यार आई डू समथिंग फॉर इट while there is no harm for me, ठीक है। तो मैंने ये किया कि मैं यहाँ पे रुका और मैंने आई ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग इन द कंट्री, क्योंकि देखो जितने भी लोग बाहर चले जाए ना, फिर भी इधर बहुत लोग होंगे, तो जो लोग इधर कर सकते हैं कुछ, उनको तो करना चाहिए ना, सिंपल बात है। तो इसलिए सिंपल आइडियोलॉजी थी, और उसका ये नहीं है कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैंने कोई बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे रुका हूँ और मैं अपॉर्चुनिटी बना रहा हूँ, तो इस मुल्क में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं टू मेक मनी, टू ग्रो। इट्स नॉट लाइक कि यार अच्छा भाई बस जो बाहर जा रहा है सिर्फ वही पैसे कमा सकता है, और जो पाकिस्तान में रह रहा है बस वो तो बस पैसे कमा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। देखो जो अभी जो रिसेशन है वो ग्लोबल है, आजकल हर जगह प्रॉब्लम्स है, हर जगह प्रॉब्लम्स है। तो पाकिस्तान में तो खैर ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा यहाँ पे तो ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ना और भी हज़ार मसले हैं, आप कोई भी काम करने जाओ, लेकिन फिर ऑब्वियसली जब चैलेंजेस आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या कर सकें। मैं पर्सनली सोचता था कि मेरे सर्कमस्टांसेस जो थे वो ऐसे थे कि मैं ये कर सकता था, तो मुझे करना चाहिए था, मैंने किया, मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिला है। आज मैं मुतमईन हूँ अपने डिसीजन से, और आई एम वेरी हैप्पी। बट इफ समबडी इज गोइंग अब्रॉड, आई थिंक, मतलब आई डोंट ब्लेम देम, आई डोंट ब्लेम पीपल हु आर स्टेइंग। हर बंदे को बस अपना देखना चाहिए, अपना करना चाहिए, एंड इन वट एवर कैपेसिटी दे कैन, दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द कंट्री Wherever they see growth, basically. Yeah, that makes sense. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आई गेस
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासकर व्हेन इट कम्स टू द एलीट यूनिवर्सिटीज़, लाइक करंटली इट इज़ माय लास्ट सेमेस्टर इन नस्ट, मेरे कोर्स मेट हैं जो कि GIK में या लम्स में, वहाँ पे एक तरीके का सोशल डायलेमा सेट हुआ हुआ है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड गो टू फॉरेन कंट्रीज। और मेनली आई गेस वो इस फैक्टर की वजह से भी नहीं कि इकोनॉमिक फैक्टर थे। आई गेस थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी लाइफ व्हेन इट कम्स टू द एलीट यूनिवर्सिटी जहाँ पे एलीट लोग आ रहे हैं, एक उनका सेट ऑफ माइंड इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान में रह रहे हो ना तो देयर आर इश्यूज़ फॉर यू। सही है। अब मुझे नहीं पता कि इट कम्स थ्रू योर इन्वायरमेंट और इट इज़ समथिंग दैट इज़ इनकलकेटिंग थ्रू द कोर्स करिकुलम और थ्रू द सोशल मीडिया, बट इट इज़ एन इशू। मुझे अच्छा, ये आपके टाइम पे था कि बहुत मैसेज ऐसे कि इफ़ आई टुडे सिट इन लाइब्रेरी एंड आस्क 10 पीपल, तो आउट ऑफ 10 8 वुड से कि भाई मुझे तो बाहर जाना है। तो इतना शायद नहीं था। आई वुडंट से कि 8 आउट ऑफ 10 वुड से दैट, मे बी 5। सो आई थिंक वो थोड़ा इंक्रीज हुआ ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कहीं से भी बेहतर नहीं हुए। सो प्रॉब्ली इतना नहीं था, बट अब थोड़ा सा बढ़ गया। बट हमेशा से यार देखो, बाहर जाने को तो था, जो जो जा सकता था वो जा रहा था, जो बैचलर्स बाहर से कर सकता था वो बैचलर्स बाहर से कह रहा था, जो मास्टर्स बाहर से कर सकता था वो मास्टर्स बाहर से कर रहा था। मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, पर्सनली भी जो मैंने अप्लाई किया पूरी जिंदगी अपनी, और मैं लोगों को भी जो एडवाइस करता हूँ, वो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। जो FS में जो है ना हमने सीखा था, और उससे पहले भी मैंने आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। मैं अपनी हायरिंग में भी ये देखता हूँ कि यार भाई, आप मुझे डोंट शो मी योर डिग्री, आई नेवर आस्क फॉर एनीवन्स GPA, आई डोंट केयर इफ दे हैव ग्रेजुएटेड, आई डोंट केयर इफ दे एवर वेंट टू यूनिवर्सिटी, ऑल दे केयर इज कि भाई उन्होंने करा क्या और सीखा क्या। सही है। सो आप, मेरा ये गोल हमेशा से होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, दैट्स व्हाट मैटर्स। आप बाहर चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग जो है ना वो मेरे पास इंटरव्यूज के लिए आते हैं जो कि इंग्लैंड से डिग्री करके आए हैं, देर स्टिल एट द सेम लेवल जो कि ग्रेजुएट हुआ है अभी फ्रेश पाकिस्तान से। सो इट ऑल डिपेंड्स कि यार आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो, आप सीख क्या रहे हो, और आपने कितना जो है ना अपने लिए स्किल से डेवलप किए ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद इफ यू आर अब्रॉड, इफ यू आर हियर, डजंट रियली मैटर, यू विल गेट जॉब। इफ यू आर person who has will and skill, everybody wants to hire you, पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं और। अच्छा, ये जो आपने लास्ट बात की ना, इसमें तो मैं क्लिप क्रॉप करूँगा कि GPA डजेंट मैटर, और फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भेजना शुरू कर दूंगा क्योंकि मेरे फैमिली वाले अक्सर कह रहे होते हैं भाई क्या कर रहे हो फार्मूला स्टूडेंट में, GPA कहाँ जा रही है, GPA कहाँ जा रही है। फॉर्मूला स्टूडेंट में जो आप करोगे ना वो लर्निंग है, जो आप अभी ये कर रहे हो ये लर्निंग है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपको सीखोगे। देखो वर्क प्लेस पे जो है ना, एवरीबडी वांट्स अ पॉलिश पर्सन जो कि थोड़ा सा सीजनड हो। फॉर्मूला स्टूडेंट जो है ना वो सीजनिंग करता है। देखो ना, अगर आप DP वर्ल्ड आपका स्पॉन्सर है और इतने आपने स्पॉन्सर्स गेन किए हैं, तो ये जो आप पूरी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप लोगों को अपने पे ट्रस्ट करा रहे हो वाइल बीइंग स्टूडेंट, ठीक है, आप सारी डीलिंग कर रहे हो, आप ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लॉन्च इवेंट्स कर रहे हो। मुझे आप बताओ, आपका दूसरा स्टूडेंट जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है या डिग्री कर रहा है, वो नहीं कर रहा। नॉट हैविंग सेड दैट, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा। आपको पिक करना चाहिए कि यार आपकी क्या वो है, और अगर आप पढ़ने में और आप एक्चुअल डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो और आपने इंजीनियरिंग करनी है तो ठीक है, वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह होती हैं। बट इवन उनके लिए भी मैं कहूँगा भाई, लर्निंग बाय डूइंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यू हैव टू डेवलप प्रोडक्ट्स। आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, यू हैव टू डिज़ाइन। सही है। सो वट एवर यूर डूइंग, यू हैव टू एक्चुअली डू दैट, एंड फॉर्मूला स्टूडेंट गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म। तो इसलिए GPA से बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर्मूला स्टूडेंट। चाहे आप बिजनेस के स्टूडेंट हो, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हो, आप, इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप फॉर्मूला स्टूडेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू फार्मूला स्टूडेंट, आपने आई गेस 3 फार्मूला स्टूडेंट अटेंड किए, 13, 14 एंड 15, एंड इनमें आपका मेनली रोल क्या था, बिजनेस प्लान का? मेरा टाइटल ये था मार्केटिंग मैनेजर का, बट रोल मेरा ये था कि मोस्टली मार्केटिंग, एक तो मार्केटिंग देखना, बट मोस्टली स्पॉन्सर्स लाइजन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो थी ना, जैसे उसमें गाड़ी बनाने के अलावा जितने काम थे ना वो मैं करता था। बस गाड़ी में नहीं बनाता था, बस गाड़ी नजीब भाई बनाते थे। हाँ हाँ, सो गाड़ी में नहीं बनाता था बाकी, और मेरा गैराज में कम रोल होता था ना, मेरा कोई गैराज में इनपुट होता था, एक्सेप्ट कि जब वो लिवरी बन रही थी NAS 15 और 14 की। But apart from that, everything else I was doing. Obviously, main thing was making the car, but जो बाकी project management थी, sponsors, logistics, marketing, social media, और वो जो हमने पूरा racing school बनाया, mascots, everything, communication, everything was. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, टेक्निकल साइड से डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म तो नहीं होता था आपके साथ? यार एक्चुअली देखो, मेरे से पहले होता था, मेरे होते भी नहीं होता था।
just to give you an example, देखो the reason Najula and I have such great synergy is कि यार we are very aligned in terms of what we have to achieve. अभी भी देखो ना, मोड के अंदर भी तो ये हो सकता है, he looks after product, I look after everything else other than product. तो वो synergy होना बहुत जरूरी है. If you guys are not on the same page ना, तो हम दोनों जब आए थे ना, तो हम लोग वो synergy लेके आए थे, वरना हमसे पहले एक्चुअली वो रिफ्ट थी. मुझे नहीं पता हमारे बात थी या नहीं थी, लेकिन वो चीज़ होती है कि अच्छा यार वो मार्केटिंग वाले अपने उसमें हैं. तो देखो आप, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड इफ यू आर मार्केटिंग समथिंग एल्स, देन ऑब्वियसली रिफ्ट तो आएगी. तो इसलिए ज़रूरी है कि सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. एंड आई गेस इंटरनली टीम में जितने भी रोल हो, द मार्केटिंग लीड एंड द टेक्निकल लीड, दे शुड ऑलवेज अलाइन ऑन द सेम पॉइंट. और हमारे केस में यही था ना एक्चुअली, नजीब वाज द टेक्निकल लीड, आई वाज द मार्केटिंग लीड, एंड वो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. Going down the line, आपने इनिशिएट किया, यू वर देयर until 2015 with the team. You saw 2015 में गाड़ी ना सिर्फ एक ट्रैक पे चली, it went to Germany as well, and it ran on the track. We still have the video and we're showing it to sponsors. देखिए हमारी गाड़ी जर्मनी में चली थी. So one thing जो एक चीज़ I think that we did miss out during our journey from 2012 until now is sustainability. Team में there were breakages in between and we did have to start over again. तो I think अगर वो sustainability होती और अगर team was going at the pace it started off in 2012. You said you started a racing school and you guys were working, you guys were bringing in sponsors who were giving job opportunities later on. So one thing that I think agar sustainability hoti, things would have been really different for NFST. So what's your POV on that? Where did it all went wrong? Not wrong, but जो links break हुई. यार आई थिंक यही था जो आपने रीज़न आइडेंटिफाई किया ना. हालांकि हम जो है ना ट्रांजिशन कर रहे थे अच्छे तरीके से 2012, 13, 14, 15, बट आई डोंट नो 15 के बाद जो है ना वो थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा आ गया. और क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स अच्छे तरीके से ट्रांसफर नहीं हुई और जो फ्यूचर टीम्स बन रही थी वो सही तरीके से ग्रूम नहीं हुई. आई थिंक सो विल ऑल्सो टेक सम ब्लेम आउट फॉर इट. बट वो अगर प्रॉपर तरीके से होता, तो जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि यार आइडियली होना ये चाहिए था कि अगर हम ट्रैक पे गए और हमने ट्रैक फिनिश नहीं किया तो आप लोगों को ट्रैक फिनिश करना चाहिए था ना. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक दोबारा बात ही नहीं गई. अभी भी हमारा जो हाई था वो 2015 था. सो आई थिंक इट हैज़ मोस्टली इट हैज़ टू डू विद HR.